کا ہمارا ایمان فروز موضوع ہے شب برات کی رات کی فضیلت۔ خاموش رات، ہر طرف سکون ہی سکون ہے، لیکن اس خاموشی میں رحمتوں کی ایک بوند ہے۔ آج کی رات نہ صرف زمین خاموش ہے بلکہ آسمان بول رہا ہے، فرشتے صفے باندھے اتر رہے ہیں اور رب کریم کی رحمت ہر سمت پھیل رہی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، قسمتوں کے بند دروازے کھلتے ہیں اور گناہوں سے بوجھل دل سجدوں میں ہلکے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے شب برات، بخشش کی رات، رجوع کرنے کی رات اور اپنے رب کی طرف لوٹ آنے کی رات۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی دور کر دوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اس کے روزی رزق میں برکت ڈال دوں۔ اتنی عظیم ہے نا یہ رات، جہاں مایوس دلوں کو امید ملتی ہے، ٹوٹے ہوئے رشتے جڑتے ہیں اور آنکھوں سے بہے ہوئے آنسو عرش تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ رات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ رب ہم سے ناراض نہیں، ہم ہی اس سے دور ہو گئے تھے، اور شب برات ہمیں پھر سے اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کا موقع دیتی ہے۔ آج کی رات اپنے گناہوں کو یاد کرو، اپنی کوتاہیوں کو پہچانو اور سچے دل سے اپنے رب کے حضور جھک جاؤ، کیوں نہ کہ شاید یہی وہ رات ہے جس میں ہماری تقدیر بدل جائے گی اور ہمارا نام بخشش پانے والوں میں بھی لکھا جائے۔ ناظرین اکرام، اگر اس رات کا ذکر آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور مزید ایمان فروز موضوعات تک پہنچتے رہیں، اور ہر اس شخص تک شیئر ضرور کریں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طلبگار ہے۔ یاد رکھیں، آپ کا ایک لائک کسی کے دل کو بدل سکتا ہے، آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی کا رخ بھی موڑ سکتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم اور مغفرت مانگنے کی رات۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ماہ شعبان کی 15ویں رات اپنی ساری مخلوق پر خاص نظر فرماتے ہیں اور سب کو معاف بھی کر دیتے ہیں سوائے مشرک کے اور اس شخص کے جس کے دل میں کینہ ہو، دشمنی ہو اور بغض ہو، یعنی دشمنی اور بغض ہو۔ سنین ابن ماجہ شریف سے یہ حدیث ہمیں شب برات کی حقیقی روح سمجھاتی ہے۔ یہ کوئی عام رات نہیں بلکہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی شان رحمت کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر و کرم کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خاص نظر و کرم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عام دنوں کے مقابلے میں اس رات بندوں پر زیادہ توجہ فرماتے ہیں۔ بندوں کے اعمال، آنسو، دعائیں سب کو خاص طور پر قبولیت کا موقع دیا جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ رب العزت اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ اس رات میں سب کے لیے مغفرت عام ہے، مگر دو قسم کے لوگ مغفرت سے محروم کیوں رہتے ہیں؟ اس بارے میں حدیث پاک میں موجود ہے۔ اس بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اس رات سب کو معاف کر دیا جاتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والوں کے۔ یہاں ہمیں بہت گہرا سبق ملتا ہے۔ مشرک وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ پر مکمل بھروسہ نہیں کرتا، ایسے شخص کے لیے مغفرت اس وقت تک نہیں جب تک وہ سچی توبہ کر کے توحید کی طرف نہ لوٹ آئے۔ دل میں کینہ رکھنے والا، یعنی یہ بہت اہم اور نازک بات ہے۔ کینہ رکھنے والا وہ ہے جو کسی سے ضد، نفرت یا دشمنی دل میں پالے رکھے، معاف کرنے پر تیار نہ ہو، دل میں بغض جمع کر کے بیٹھا رہے۔ ایسے شخص کے لیے پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دلوں کی صفائی سے جڑی ہے۔ شب برات ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ یہ حدیث ہمیں صرف عبادت نہیں، اصلاح دل کا سبق بھی دیتی ہے۔ سچی توبہ، دل سے گناہوں پر ندامت، لوگوں کو معاف کر دینا، دل سے گناہوں پر ندامت اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم، لوگوں کو معاف کرنا، دل کو کینہ، بغض اور نفرت سے پاک کرنا۔ جب دل صاف ہوتا ہے تو رحمت خود بخود چل کر آتی ہے۔
नाज़रीन इकराम, अगर हम भी चाहते हैं कि शब बरात की रहमत हमें भी नसीब हो तो सिर्फ सजदे काफ़ी नहीं है, दिल को भी सजदा करना होगा, नफ़रतों को निकालना होगा और माफ़ करना सीखना होगा। शायद किसी को दिल से माफ़ करना ही हमारी मग़फ़िरत का सबब बन जाए। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है, बहुत बड़ी तादाद में मग़फ़िरत के बारे में कुछ यूँ बयान किया गया है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है, वो फरमाती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात निस्फ़ शबान जन्नतुल बकिया तशरीफ़ ले गए। फिर फरमाया, अल्लाह ताला माह शबान की 15वीं रात आसमान दुनिया पर नज़्वल फरमाता है और बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों को बख्श देता है। रज़मी शरीफ में ये हदीस शब बरात की वस्ते रहमत को हमारे सामने खोल देती है। यहाँ सिर्फ मग़फ़िरत का जिक्र नहीं बल्कि बहुत बड़ी तादाद में मग़फ़िरत का ऐलान है। आसमान दुनिया पर नज़्वल का मफ़हूम अल्लाह ताला का नज़्वल इसकी शान के मुताबिक है, जिसकी कैफियत को इंसानी अक्ल मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकती, लेकिन इसका पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है। अल्लाह ताला इस रात अपने बंदों के और भी ज़्यादा करीब हो जाता है, दुआओं को ख़ास तवज्जो से सुना जाता है, तौबा करने वालों के लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये वो लम्हा है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को मायूस नहीं लौटाता। बकरियों के बालों से भी ज़्यादा इस मिसाल की हिकमत, अरब माशरे में बकरियों की तादाद बहुत ज़्यादा होती थी और इनके बालों का शुमार मुमकिन ही नहीं। ये मिसाल देकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये समझा रहे हैं कि ये अल्लाह ताला की मग़फ़िरत गिनती में नहीं, नाप तोल में भी नहीं, बल्कि इंसानी अक्ल से भी बाहर है। यानी कितने ही गुनाहगार हो, कितने ही भटके हुए हो, कितने ही सालों से गफलत में हो, अगर वो इस रात सच्चे दिल से लौट आए तो अल्लाह ताला इन्हें माफ़ फरमा देते हैं। ये हदीस हमें उम्मीद देती है, मायूसी को तोड़ती है और बताती है कि अल्लाह ताला की रहमत महदूद नहीं, गुनाहों की कसरत रुकावट नहीं, बस दिल का झुक जाना शर्त है। शब बरात की रात दुआ आम दिनों से ज़्यादा कीमती है, इस्तग़फ़ार आम दिनों से ज़्यादा असर रखता है, आँखों के आंसू अर्श तक पहुँच जाते हैं। नाज़रीन इकराम, अब हमें इस रात क्या करना चाहिए, ज़रा गौर से सुने। इस रात को सिर्फ जागने की रात ना बनाएं, बल्कि पलट आने वाली रात बनाएं। अपने गुनाहों का इक़रार करें, अल्लाह से रो रो कर माफ़ी मांगे, दिल से इस्तग़फ़ार करें और मुकम्मल यकीन रखें कि मेरा रब मुझे खाली नहीं लौटाएगा। क्यों ना कि जिस रब की मग़फ़िरत बकरियों के बालों से भी ज़्यादा हो, वो हमारे चंद गुनाहों से कब थक सकता है। इसी रात हम भी इन खुश नसीबों में शामिल हो जाएंगे जिनका नाम बख्शिश पाने वालों में लिखा जाएगा। हदीस नबवी में है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माह शबान की 15वीं रात आए तो रात को क़याम करो और दिन को रोज़े रखो। समीन इब्न माजा शरीफ में। ये हदीस हमें शब बरात में इबादत के अमली तरीके सिखाती है, यानी सिर्फ फजीलत जान लेना काफ़ी नहीं, बल्कि इस रात और दिन को अमल से संवारना असल मकसद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात को क़याम करो। क़याम का मतलब है अल्लाह के हजूर खड़े होना, रात के वक़्त इबादत में मशगूल होना। इसमें शामिल हो सकता है नफल नमाज 2, 4, 6 या जितनी तौफीक हो, कुरान पाक की तिलावत करना जितनी देर कर सकते हो, कसरत से इस्तग़फ़ार करना, दुरूद पाक पढ़ना, गिड़गिड़ा कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ करना। ये वो वक़्त होता है जब खामोशी खुद दवा बन जाती है और आंसू ज़ुबान बन जाते हैं। शब बरात की रात इबादत में लंबे क़याम का नाम नहीं, बल्कि सच्चे दिल से थोड़ा सा झुक जाना भी काफ़ी है। दिन नफल रोज़ा, नफ्स की तरबियत। हदीस में फरमाया है, जिनको रोज़ा रखो, ये फ़र्ज़ रोज़ा नहीं बल्कि नफल रोज़ा है, जो मोहब्बत, शुक्र और अतायत की नीयत से रखा जाता है। रोज़े के फ़ायदे। रोज़ा नफ्स को काबू में लाता है, दिल को नरम करता है, दवा की कबूलियत का सबब बनता है, रात की इबादत को दिन में मुकम्मल करता है। यूँ रात और दिन दोनों मिलकर अल्लाह ताला की कुर्बत का ज़रिया बन जाते हैं। यहाँ एक अमली वजाहत ज़रूरी है। ये हदीस सनद के एतबार से ज़ईफ़ है, यानी इस
की रवायत मुकम्मल मजबूत दर्जे की नहीं, लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि शब बरात की फजीलत दीगर मुतहद अहादीस से साबित है। असहाबाए किराम, ताबीईन और उम्मत मुसलमा का इस रात इबादत करना साबित है। नाज़रीन किराम, शब बरात हमें तवाज़ुन सिखाती है, ना गुरूर ना गफलत, बस खलूस। जो ज़्यादा कर सके करे, जो कम कर सके वो भी महरूम नहीं। असल चीज़ नीयत और दिल की हाज़िरी है। नाज़रीन किराम, शब बरात कोई बोझ नहीं, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक दावत है। रात को इसके दर पर खड़े हो जाओ और दिन को शुक्र के रोज़े से अपनी तौबा को मुकम्मल कर लो। शायद यही क़याम और यही रोज़ा हमारी निजात का सबब बन जाए। ज़रा गौर से सुने, अब जानते हैं शब बरात में करने वाले अमाल। दिल की इस्लाह अमल की रहनुमाई है। शब बरात सिर्फ जागने का नाम नहीं बल्कि पलट आने, दिल को संवारने और अल्लाह ताला के करीब हो जाने वाली रात है। आए जानते हैं कि इस बाबरकत में हमें क्या करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना भी ज़रूरी है। तौबा इस्तग़फ़ार सबसे पहला और सबसे अहम अमल है। शब बरात की असल रूह सच्ची तौबा। तौबा का सही तरीका, दिल से गुनाहों पर नदामत करना, अपने रब के सामने शर्मिंदा होना और आइंदा गुनाह ना करने का पुख्ता इरादा भी करना। ये तीन चीज़ें तौबा को ज़िंदा कर देती हैं। इस्तग़फ़ार के अल्फाज, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तूबू अलैहि। ये अल्फाज सिर्फ ज़ुबान से नहीं बल्कि दिल से अदा किए जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। शब बरात की रात में नफल नमाज बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन याद रखें ये इबादत इनफरादी है। कोई मखसूस रकात मुकर्रर नहीं, 2, 4, 6 या जितनी तौफीक हो। असल चीज़ दिल का सुकून और तवज्जो है, ना कि रकात की गिनती। अल्लाह ताला के सामने चंद लम्हे सच्चे दिल से खड़े होना बहुत ही लंबी इबादतों से बेहतर हो सकता है। कुरान पाक की तिलावत करना नूर और सुकून का ज़रिया बनता है। कुरान पाक दिलों की शफा है। शब बरात में कुरान पाक की तिलावत रूह को ज़िंदा कर देती है, ख़ुसूसन सूरह यासीन, सूरह दहकान, सूरह रहमान। इन सूरतों की तिलावत दिलों को नरम करती है, आँखों को नम करती है और अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद बढ़ा देती हैं। लेकिन याद रखें, थोड़ी तिलावत समझ के साथ और तवज्जो के साथ हो, बहुत ज़्यादा तिलावत से बेहतर है। दुआ और फिर कबूलियत का सुनहरी वक़्त शब बरात की रात ही में है। दुआ की रात है। इस रात मांगे अपनी मग़फ़िरत की, वालिदैन के लिए रहमत की, महरूमीन के लिए बख्शिश की, उम्मत मुसलमा के लिए खैर व आफियत की। दुआ में हाथ उठाएं, दिल खोलें, आंसू बहा दें, क्यों ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आंसुओं की ज़ुबान ज़्यादा समझता है। दिल साफ़ करना मग़फ़िरत की सबसे बड़ी कुंजी है। ये सबसे मुश्किल लेकिन सबसे ज़रूरी अमल है। दिल में मौजूद कीना, हसद, बुग़्ज़ और रिश्तों की कटौती, ये सब अल्लाह ताला की मग़फ़िरत में बड़ी रुकावट है। शब बरात हमें सिखाती है इबादत के साथ दिलों की सफाई भी ज़रूरी है। किसी को माफ़ कर देना शायद हमारी मग़फ़िरत का सबब बन जाए। शब बरात की रात में किन चीज़ों से बचना चाहिए, ज़रा गौर से सुने। इस्लाम हमें मुतअद्दिल इबादत सिखाता है। बदात से परहेज़ करें, आतिशबाज़ी, शोर हंगामा, गैर साबितशुदा रसूमात, गलत फहमियाँ, हलवा या किसी ख़ास खाने को फ़र्ज़ ना समझें। इबादत को रस्म बना लेना। याद रखें, इस्लाम ना अफराद सिखाता है ना तफ़रीक़, बल्कि तादुल का दीन है। नाज़रीन किराम, शब बरात नुमाइश की रात नहीं, ये तन्हाई में रब को मनाने की रात है। दिल को झुका लो, आँखों को नम कर लो और सच्चे दिल से कह दो, या अल्लाह मैं तेरे दर पर आ गया हूँ, आप मुझे खाली ना लौटाएं। नाज़रीन किराम, ये रात गुजर जाएगी, ये खामोशी भी टूट जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि हम बदल जाएंगे। शब बरात सिर्फ एक तारीख नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से वापसी का आखिरी दरवाज़ा भी हो सकती है। आए इस रात को गवाह बना लें कि हम वाकई अपने रब की तरफ लौट आए थे। अभी अल्लाह ताला के हुजूर हाथ उठाकर साफ नीयत से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक इस बाबरकत रात के सदके हमारे वो भी गुनाह माफ़ फरमा दे जो हम भूल चुके हैं लेकिन तेरी किताब में लिखे जा चुके हैं। ऐ रब्बे करीम, हम टूटे हुए दिल लेकर आए हैं, शर्मिंदा आंखों के साथ आए हैं और खाली हाथ आए हैं।
तेरे दर पर खड़े हैं। या अल्लाह हमारे दिलों को किना हसद बग़्ज़ से पाक फरमा दे, हमें माफ़ करने वाला बना दे ताकि हम भी तेरी मग़फ़िरत के हक़दार बन सकें। ऐ अल्लाह पाक हमारे वालिदैन को सलामत रख और जो इस दुनिया से जा चुके हैं इनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना दे। या रब्बे करीम हमारी तकदीरों में हदायत लिख दे, आसानियाँ लिख दे और बख्शिश लिख दे। और अगर इस रात तू किसी एक दुआ को कबूल फरमा रहा हो तो या रब्बे करीम वो दुआ हमारी मग़फ़िरत की दुआ बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन इकराम, अगर इस दुआ ने आपके दिल को छू लिया हो और आपकी आंखें भी नम हो गई हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आमीन लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इस पैगाम में रहमत को अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें। यकीन माने आपकी एक सब्सक्राइब हमें मज़ीद ऐसे ही रूह जगा देने वाले पैगामात आप तक पहुंचाने की ताकत देगी और हो सकता है आपके एक शेयर से किसी के गुनाहों की माफ़ी का सबब भी बन जाए। फिर मिलेंगे अगले ईमान फरोज़ मौजू के साथ, तब तक फी ईमानिल्लाह।